welcome to our YouTube channel Study Dreams. Today we are going to discuss the third chapter of class 6 science, that is fiber to fabric. Students, firstly learn the meaning of fiber and fabric. So what is fiber? Fiber is a long, fine and thin hair-like structures. You can see in this picture these are the long and thin structures seems like our hairs. Students, here you should know the meaning of strand. What is strand? Anything which is long and thin is called strand. So fiber is a fine strand which seems like our hairs. Okay, these are the strands. What is yarn? When these fibers are interlocked with each other, then they make yarn. Student, this is the picture of yarn. Okay. What is fabric? When these yarns are combined together, then they form fabric. Look at this picture. This is fabric. In a simple language, fabric means cloth which is used to stitch our dresses. Look at this flow chart. This chart shows the process of fiber to fabric. Basically, these are the raw material which is used to make fabrics. When these fibers or these threads are interlocked with each other, they make this yarn. You can see the picture of yarn. These hairs are fibers. When these yarns are interlocked with each other, then they make this fabric. Here, student, write an important thing, that is, when different fabric types are produced by different method of joining the yarns together. What it means? जिस तरीके से yarn एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, उसी तरीके का फाइबर हमें मिलेगा. It means fabric is completely depend upon the type of yarns. It means type of fabric completely depend upon the method of binding of yarns. Okay. Next is types of fabrics. We have different type of fabrics which we use in different seasons and different occasions. First is cotton. Cotton is mainly used in the summer season as it is very soft and comfortable. It has capacity to absorb our sweats. That's why it is used in mainly summer seasons. Casual clothes which we wear in the daily routine has contained about 95% of cotton. So students, क्या होता है कि कॉटन एक ऐसा फैब्रिक है जो पानी को मतलब मॉइस्चर स्वेट हमारे पसीने को इजीली अब्जॉर्व कर लेता है. इसलिए हम इसको मेनली कौन से सीजन में डालना पसंद करते हैं? समर सीजन में. ठीक है. और जो हमारे डेली रूटीन के कपड़े होते हैं, कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, कैजुअल क्लॉथ होते हैं, उसके अंदर 95% क्या होता है? कॉटन होता है. इसलिए हम कॉटन को ज्यादा प्रेफर करते हैं because it is very comfortable. Okay. Second is wool. Wool gives us warmth to our body. That's why we prefer it in winter seasons. As in the cool weather, our body require heat and warmth. So this fiber is very suitable at that time. Okay. जैसे कि हमें पता है ना, सर्दियों के सीजन में हमें बहुत ठंड लगती है, तो उस टाइम हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? गर्मी चाहिए होता है, गर्माहट चाहिए होती है. तो हम उस टाइम पे क्या सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं? वुलन क्लॉथ्स लाइक स्वेटर्स, ग्लव्स, कैप्स एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट इज सिल्क. सिल्क इज very shining and very soft fabric. It is mainly used in the party wear dresses because it is very expensive. Silk makes dresses very attractive and very fascinating. तो सिल्क क्या होता है बच्चों? जो जैसे हम अपनी पार्टी वेयर ड्रेसेस के अंदर देखा होगा कि ज्यादातर कपड़ा कौन सा होता है? सिल्क होता है. बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत ज्यादा शाइनिंग होता है. ये हमारी ड्रेसेस को क्या बनाता है? बहुत अट्रैक्टिव और बहुत चार्मिंग बनाता है. इसलिए हम क्या होता है, हमारी ड्रेसेस के अंदर क्या होता है? सिल्क यूज होता है.
लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया सिल्क बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम इसको सिर्फ अपनी पार्टी वेयर ड्रेसेस के अंदर ही अफोर्ड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और नॉर्मली हम इसको यूज नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज सोर्सेज ऑफ फाइबर्स। On the basis of sources of fiber, we have two type of fibers. First is natural and second is synthetic, or you can say man-made fibers. So what is natural fibers? Natural fiber कौन से होते हैं? These are those fibers which we obtained from the natural sources, जो हमें natural sources से मिलते हैं, like plant and animal. प्लांट की आगे, प्लांट फाइबर्स के आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉटन एंड जूट, सेम एज एनिमल के एग्जांपल्स हैं सिल्क एंड वूल। इसी तरह हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स के भी एग्जांपल है, नायलॉन, रायोन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। अभी हमने इसको ब्रीफ में पढ़ा है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, फर्स्ट वी हैव प्लांट फाइबर्स. Depending upon the part of plant which we use to extract our fibers, these fibers are again categorized into different categories. First is fruit fiber. These fibers are obtained from the fruit of the plant. The example of these are cotton and coconut fiber. मतलब फ्रूट फाइबर क्या होता है? जिस प्लांट के हम फ्रूट को लेते हैं एज अ फाइबर, मीन्स you can see in this picture, this is a cotton plant and this is a cotton ball. This cotton ball is also called as cotton fruit. मतलब इस cotton plant का ये cotton fruit हो गया, और इस fruit को extract करना, इस fruit को निकालना as a source of fiber. So this is known as fruit fiber. Okay. Next is bast fiber. These fibers are obtained from the stem of plants. Its examples are jute and flax. You can see in this picture. This is a jute plant, and these are the stem of the jute plant. These are used as a source of fiber. Next is leaf fiber. These fibers are obtained from the leaf of the plant. These are very rough and very strong. Sisal fibers are the example of leaf fibers. Students, did you see the tree of date? The leaf of this tree are used to make different things like mats, carpets and other handicraft materials. बच्चों, आप लोगों ने कभी खजूर का पेड़ देखा है? खजूर मतलब डेट है ना? तो आपने खजूर का पेड़ देखा है, जो उसकी पत्तियां होती है ना, उस पत्तियों से जो हमें फाइबर मिलता है वो किसके लिए यूज होता है? वो कारपेट्स बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए और बाकी हैंडीक्राफ्ट मटेरियल बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस द कॉटन. Cotton is world's most popular plant fiber because cotton is used in different things, like it is used in clothes, it is used in pillows, it is used in blankets and many other things. It is obtained from the cotton plant which is a shrub. What do you mean by shrub? Shrub मतलब झाड़ियाँ. तो cotton plant क्या है? You can see in this picture, this is a cotton plant and this is look like a shrub, मतलब झाड़ी. ठीक है. And this is cotton ball. These plants grow well in the black soil. It require a warm temperature with moderate rainfall. मतलब कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है उन्हें? गर्म क्लाइमेट चाहिए होता है विद मॉडरेट रेनफॉल, हल्की हल्की बारिश. तो ऐसा क्लाइमेट आपको पता है ना बच्चों कहाँ पे पाया जाता है? हमारे एरियाज में, लाइक पंजाब, हरियाणा, इनके आसपास के एरियो में क्या पाया जाता है? ऐसा टेम्परेचर पाया जाता है. तो कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ पे ग्रो होगी? पंजाब, हरियाणा, ऐसे एरियाज में बहुत ज्यादा ग्रो होगी. ठीक है. कॉटन प्लांट्स आर बुशी, मीन्स these plants are very wide and 1 to 2 meter tall. You can as you look in this picture. Next is how cotton made or how cotton yarn made. In this there are 3 main steps. The first is picking.
पिकिंग के अंदर क्या होता है बच्चों, जो ये आपने कॉटन बॉल देखी मैंने आपको दिखाई थी है ना, इस कॉटन बॉल को सबसे पहले पिक किया जाता है, उठाया जाता है। कैसे उठाया जाता है, पहले के टाइम में, पहले के ट्रेडिशन से क्या से होता था, इसे हाथ से उठाते थे, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आजकल क्या यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो पहले जब हाथ से उठाते थे तो उसको क्या बोलते थे, हैंड पिकिंग। और अब इसके लिए क्या यूज होता है, मशीन यूज होती है। तो इस कॉटन बॉल को अच्छे से उठाना, पिक करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं पिकिंग। एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज गिनिंग। इसके अंदर क्या होता है, देखो जो हमने कॉटन बॉल को उठाया, उस कॉटन के फाइबर के साथ साथ क्या होता था, सीड्स भी होते थे। प्लांट है तो प्लांट के अंदर सीड्स तो होंगे ही, है ना, तो सीड्स तो होते थे। तो हमने तो कॉटन बॉल को उठाया, अब उसके अंदर सीड्स तो है ना। तो हम सीड्स के साथ तो फाइबर बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे बच्चों, उन फाइबर्स में से हम क्या करेंगे, सीड्स को अलग करेंगे। तो उन सीड्स को अलग करना किसमें से, कॉटन फाइबर में से, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गिनिंग। क्या कहते हैं, गिनिंग। और ये कैसे होता है बच्चों, पहले के टाइम में ये भी हाथ के साथ ही होता था, लेकिन आजकल ये मशीन्स के साथ होता है। और उन मशीन्स को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉटन गिन्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज स्पिनिंग। बच्चों जो हमने अभी ना कॉटन फाइबर लिया था, जो क्या था, सीडलेस था, उसे हम क्या बोलते हैं, लिंट बोलते हैं। तो जो लिंट होती है ना, उसको हम फिर क्या करते हैं, स्पिनिंग व्हील के अंदर डाल देते हैं। आपने स्पिनिंग व्हील देखे हैं, ये देखो, ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, वो क्या है, स्पिनिंग व्हील है। क्या यूज कर रहे हैं ये, स्पिनिंग व्हील। हम इसे चरखा भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या डाली जाती है, लिंट डाली जाती है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये लिंट डाल रहे हैं। तो इसको जब हम इसको रोटेट करेंगे ना, इसको व्हील को रोटेट करेंगे, तो क्या होगा, जो लिंट होगी ना, वो क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगी। ये देखो, स्ट्रेट फॉर्म में आ रही है ना, फाइबर की फॉर्म में आ रही है। जब इसको घुमाएंगे तो उससे क्या होगा, स्पिन होएगा व्हील, तो क्या होगी, हमारी फाइबर स्ट्रेट फॉर्म में आएगी। और जब हम इसको रोटेट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, इससे हमारा कंप्लीट यार्न बनेगा, जो क्या होगा, कॉटन यार्न, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, स्पिनिंग। तो इसके अंदर क्या हुआ बच्चों, कॉटन बॉल से हमने क्या बनाया, कॉटन यार्न बनाया, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉटन फैब्रिक्स। When these cotton yarns are combined together, then they form cotton fabric. This is cotton fabric, which is used to make cotton clothes. ठीक है। Next is properties of cotton fabrics. Cotton fabric is a soft fabric which shrink. कॉटन फैब्रिक कैसा होता है बच्चों, सॉफ्ट होता है। कैसे, आपने कॉटन देखी होगी, कॉटन कैसी होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है ना, तो कॉटन फैब्रिक भी सॉफ्ट होगा। और आपने देखा होगा कि अगर हम कॉटन को पानी के अंदर डिप कर दें तो क्या करता है, वो बिल्कुल श्रिंक हो जाती है ना, सिकुड़ जाती है। तो वैसे कॉटन क्लॉथ क्या होता है, अगर हम उसको पानी में डाल देंगे तो क्या कर देंगे, वो श्रिंक हो जाएगी। नेक्स्ट इज इट कैन ऑब्जर्व मॉइस्चर। कॉटन क्या करती है, कॉटन क्लॉथ क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि हम ना समर सीजन में हैंकरचीफ का बड़ा यूज करते हैं, बारी बारी अपने फेस को ना साफ करते हैं, बिकॉज हमें स्वेट आता है ना, पसीना आता है, तो हम हैंकरचीफ को यूज करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज हैंकरचीफ किसके बने होते हैं, कॉटन से, है ना। और कॉटन का क्या क्या काम होता है, वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, वो हमारे पूरे स्वेट को बॉडी से ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए हम कॉटन क्लोथ्स भी प्रेफर करते हैं और कॉटन हैंकरचीफ भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट गेट्स रिंकल्ड इजीली। आपने देखा होगा कि जब कॉटन फैब्रिक, कॉटन क्लॉथ होता है ना, अगर जब हम उसको वॉश करके सुखाते हैं तो वो कितना रिंकल होता है, उसके अंदर कितनी सिलवटें होती हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे रिंकल से भरा होता है। तो उसको हम रिंकल्स निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, हम उसको बड़े अच्छे से आयरन करना पड़ता है ना, तो भी उसकी रिंकल्स निकलती हैं, है ना। इट इज बायोडिग्रेडेबल। वो क्या होता है, इजीली बायोडिग्रेडेबल, वो क्या होता है, बड़ी इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। लाइक जब हम उसको जला देते हैं तो वो इजीली क्या होता है, जल जाता है। या फिर हम उसको मतलब जमीन के अंदर गाड़ दें तो वो क्या होता है, इजीली डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज यूजेस। इट इज मेनली यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ्स, बेडशीट्स, कर्टन्स, टॉवल्स एंड क्विल्ट्स। ये इन चीजों के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट इज जूट।
it is also known as golden fiber because it is in golden color. Jute plants need high temperature and a lot of rainfall to grow. ठीक है? It grows best in soil that contain sand, slit and clay. क्या होता है कि जो जूट जो प्लांट है वो ज्यादा कौन सी सॉइल के अंदर उगते हैं? कौन सी सॉइल के अंदर होते हैं? जिस सॉइल के अंदर सैंड होती है, स्लिट होती है और क्या होता है? क्ले होता है. ठीक है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स. इंडिया क्या है? इंडिया ऐसी कंट्री है जिसके अंदर जूट प्रोडक्ट्स है वो सबसे ज्यादा बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. जूट से हम क्या क्या बना सकते हैं? हम बहुत कुछ बना सकते हैं. हम हैंडीक्राफ्ट चीज बना सकते हैं, हम रोप बना सकते हैं, हम जूट बैग्स बना सकते हैं, हम बहुत कुछ बनाते हैं जूट से. स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज जूट प्लांट. देखो ये जूट प्लांट है और ये जो है ना ये स्टैम्प है, जूट प्लांट की स्टैम्प है और इसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं किसके लिए? जूट फाइबर को निकालने के लिए. ठीक है. एंड दीज आर द जूट फाइबर्स. आप देख सकते हो ना इसका कलर कैसा है? गोल्डन कलर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन जूट या फिर गोल्डन फाइबर. ठीक है. जूट फाइबर से क्या बना फिर? ये जूट रोप बन गई. ठीक है. हाउ जूट इज मेड. जूट कैसे बनती है? देयर आर अगेन 3 स्टेप्स. फर्स्ट इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग क्या होता है बच्चों? जो जूट प्लांट होते हैं ना उसकी स्टेम को काटना. जो स्टेम किसके लिए यूज होती है? जूट फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होती है. वो स्टेम को काटना, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस को हार्वेस्टिंग. जो हार्वेस्टेड जो ये स्टैम्प होती है जो हमने काटी है ना, अब हम उसको क्या करेंगे? पानी के अंदर सोख देंगे. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीटिंग. क्या कहते हैं? रीटिंग. और उस इस स्टैम्प को पानी के अंदर सोखने का क्या कारण है बच्चों? क्यों हम इसको पानी के अंदर डालते हैं? बिकॉज इसकी वजह से जो स्टैम्प होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है. फाइबर है जो बहुत सॉफ्ट हो जाता है और जो इसका इनर कोर है वो भी क्या होता है? बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, जिससे हम इजीली अपना यार्न को बना सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पिनिंग. थर्ड प्रोसेस इज स्पिनिंग. इसके अंदर क्या होता है बच्चों? सेम जब हमने फाइबर सोखा था है ना, हम उसको क्या करते हैं? मशीन्स के अंदर डाल देंगे और उससे क्या बनाएंगे? लंबे लंबे फाइबर्स बनाएंगे और यार्न्स बनाएंगे. इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स यूज होती है. ये लार्ज स्केल पे काम होता है इसका. ठीक है. दिस इज द होल प्रोसेस इन व्हिच वी मेक yarn फ्रॉम द जूट प्लांट. ओके. नेक्स्ट इज एनिमल फाइबर. The fibers which are obtained from the animals are known as animal fibers. Wool and silk are the common example of animal fibers. First is wool. Wool is mainly obtained from the fleece of sheep. बच्चों फ्लीस क्या होता है? फ्लीस होता है जो शिप के ऊपर की जो लेयर होती है ना, स्किन होती है जो हेरी होती है, फर लाइक होती है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लीस बोलते हैं. ठीक है. उसको निकालना, उससे क्या मिलता है? हमें वूल मिलती है. एंड अदर हेरी एनिमल्स सच एज याक, कैमल, कश्मीरी गोट एंड अंगूरा रैबिट. द शीप इज sheared to obtain fleece. उस शीप को क्या किया जाता है? उसको उसकी जो फ्लीस है उसको क्या कहते हैं? निकालते हैं. तो shearing is the process of removing hair from the sheep by special instruments called clippers. शेयरिंग क्या होता है बच्चों? शेयरिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो शिप की हेयरी स्किन होती है उसको रिमूव करते हैं. वो किसकी हेल्प से करते हैं? क्लिपर्स की हेल्प से. क्लिपर्स क्या होते हैं? एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो क्या होता है? स्पेशली इस प्रोसेस के लिए मैन्युफैक्चर्ड होते हैं. ठीक है. You can see in this picture, this is ship and this is the hairy skin and this is the clippers which is used to remove the hairs from the ship. Okay. Next is properties of wool. First, wool is flexible. वूल है वो फ्लेक्सिबल है. कैसे बच्चों? आपने ना देखा होगा कि हम लोग स्वेटर्स डालते हैं सर्दियों के अंदर है ना,
तो अगर हम थोड़े कपड़े डालें हमें तब भी स्वेटर फिट आती है, और अगर हम ना ठंड लगे हमें ज्यादा है ना तो हम थोड़े ज्यादा कपड़े डाल लेते हैं, तो फिर भी हम उसके ऊपर अपनी स्वेटर डालें तब भी हमें बिल्कुल प्रॉपरली फिट आती है। क्यों? बिकॉज वूल इज फ्लेक्सिबल, इसीलिए, क्योंकि वूल है तो बड़ी फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है, तो इसलिए वूल क्या होती है, हमें बड़ी अच्छे से फिट आती है। ठीक है। सेकेंड इज इट ऑब्जर्व मॉइस्चर एंड डर्ट। वूल क्या करती है, मॉइस्चर को और डर्ट को ऑब्जर्व करती है। ये वूल भी मॉइस्चर और डर्ट को ऑब्जर्व करती है, लेकिन कॉटन से बहुत कम। ठीक है। थर्ड वन इज इट इज फ्लेम रेजिस्टेंस। फ्लेम रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्लेम मतलब आग, ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब बचाना। तो ये क्या करती है, हमें आग से बचाती है। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कहीं आग लगी होती है ना, तो हम प्रेफर करते हैं कि उसे ना ब्लैंकेट से कवर कर दो उस चीज को, है ना। ब्लैंकेट्स के होते हैं, वुलन के होते हैं, है ना। तो उसको वुलन के ब्लैंकेट से क्यों कवर करने को बोलते हैं? क्योंकि वो फ्लेम रेजिस्टेंस होते हैं, फायर रेजिस्टेंस होते हैं, वो आग नहीं पकड़ सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, आग को बुझा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज सिल्क। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द cocoons ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क किससे बनती है? सिल्क वॉर्म के cocoon से बनती है। Silkworm feeds on mulberry leaves and secrete an unbreakable fiber cocoon around itself. बच्चा आपने सिल्कवॉर्म को देखा है? पिक्चर्स में तो पक्का देखा होगा। ये देखो, ये सिल्कवॉर्म है, किसके ऊपर है? मालबेरी लीफ के ऊपर। ठीक है। और ये क्या है? ये वाइट वाइट सा क्या है? ये सिक्रिएट कर रहा है, सिल्कवॉर्म क्या बना रहा है? अनब्रोकेबल फाइबर विच इज cocoon। ये कोकून बनाना है अपने आसपास, अपने अराउंड, बचने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आप इस लाइफ साइकिल में देख सकते हो, ये एग है, एग से लार्वा बना। ठीक है। सिल्क वॉर्म से क्या हुआ? कोकून बना। कोकून कैसे बना? उसने अपने अराउंड क्या बना दिया? एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी अनब्रोकेबल फाइबर से, जिससे क्या हुआ, वो अंदर जाके कवर हो गया। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों? जब ये इससे बाहर निकला तो क्या रह गया? पीछे कोकून रह गया, है ना। तो उससे क्या हुआ? जो एक कोकून है जो पीछे रह गया, ये किसके लिए यूज हुआ? ये हमें एज अ सिल्क मिला। ये किसके लिए यूज हुआ? एज अ सिल्क फाइबर। इससे क्या बना? सिल्क बना। सो द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर क्या हुआ बच्चों? इस सिल्क वॉर्म ने जब सिल्क को प्रोड्यूस किया, तो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। ठीक है। और इसके अंदर जो कोकून से हमें क्या मिला? हमें अपना सिल्क मिला, सिल्क के फाइबर्स मिले। ओके। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। सिल्क क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है। इट डाइज क्विकली। सिल्क को क्या कर सकते हैं हम? बड़ी जल्दी से उसके अंदर कलर कर सकते हैं। इट डजंट श्रिंक। आपने देखा होगा, आप कितना भी सिल्क को पानी के अंदर डालो, लेकिन वो कभी भी सिकुड़ता नहीं है। क्यों? बिकॉज इट डजंट हैव द प्रॉपर्टी टू श्रिंक। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। बच्चों आपने देखा होगा कि हम लोग ना पार्टी वेयर, मैंने आपको पहले इट इज कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर्स। सो आपको मैंने पहले बताया कि सिल्क किसके लिए यूज होता है? पार्टी वेयर ड्रेसेस के अंदर। अब पार्टी वेयर ड्रेसेस समर में भी होती है और विंटर्स में भी होती है, तो सिल्क तो समर में भी यूज होगा और विंटर में भी यूज होगा। सिल्क की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम उसको समर में डालते हैं तो वो हमें कूल देता है, तो हमें क्या करता है? हमारी बॉडी को कूल देता है। और अगर हम उसे विंटर में डालें तो वो क्या करता है? हमारी बॉडी को वार्म देता है। ठीक है। सो silk has both the properties. Okay. Second is silk threads are very fine, soft and light in weight. silk के जो thread होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े फाइन होते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और क्या होते हैं? लाइट इन वेट होते हैं। ठीक है। इसी वजह से जो हमारा सिल्क फैब्रिक होता है वो कैसा होता है? बड़ा सॉफ्ट होता है और लाइट वेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज सिल्क रिटेन इट्स शेप। रिटेन क्या होता है? अपनी मेंटेन करके रखना। सिल्क अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है।
ठीक है, ड्रैप्स वेल, इजीली ड्रैप हो जाता है, ठीक है, एंड हैज अ नेचुरल शाइन, और क्या होता है उसकी शाइन बड़ी नेचुरल होती है, ठीक है, तो कभी भी पुराना नहीं होता, उसकी शाइन क्या मेंटेन रहती है, एंड कैन बी इजीली डाइड, और वो क्या कर सकते हैं, हम उसको इजीली कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स, fibers made by human being using chemical substance are called synthetic or man-made fibers. ऐसे फाइबर जो कौन बनाता है, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, किससे, केमिकल सब्सटेंस से, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। एग्जांपल्स है उसकी, पॉलिस्टर, नायलॉन, रायोन एंड एक्रेलिक। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज, the synthetic cloth so formed is strong and does not wrinkle and dyes easily. क्या कैसे, मतलब जो सिंथेटिक क्लॉथ होता है वो क्या करता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और उसके अंदर रिंकल्स बिल्कुल भी नहीं होते, और क्या कर सकते हैं, हम उसको इजीली कलर कर सकते हैं। These fibers have less air space within them. अब देखो बच्चों, उस फाइबर के अंदर क्या होता है, जो एयर स्पेस होती है ना उस फाइबर्स के अंदर वो बहुत कम होती है, सो दैट दे डू नॉट ऑब्जर्व स्वेट, तो इस वजह से क्या होता है, वो स्वेट को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, एंड आर अनसुटेबल फॉर यूज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हम हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब समर के अंदर हम कौन से क्लॉथ ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो पानी को या स्वेट को इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। और हमने अभी क्या पढ़ा कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके अंदर एयर स्पेस क्या होती है, बहुत कम होती है, जिस वजह से क्या होता है, वो पानी को या स्वेट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, क्लॉथ समर के अंदर क्या होते हैं, अनसुटेबल, अनकंफर्टेबल होते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। दैट इज वाई, इसलिए हम बोलते हैं ना सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक क्लॉथ्स हम कम डालते हैं ना समर्स के अंदर, है ना। दैट इज वाई सिंथेटिक फाइबर आर यूजुअली मिक्स्ड विद अदर नेचुरल फाइबर्स सच एज कॉटन और वूल टू मेक ब्लेंडेड फैब्रिक। तो क्या होता है बच्चों, अब सिंथेटिक फाइबर अगर हम उसको प्योर फॉर्म में यूज करें तो वो यूज नहीं कर सकते, जैसे कि हमने पढ़ा वो अनकंफर्टेबल होता है, तो क्या करते हैं, हम उसको ना मिक्सअप कर देते हैं किसके साथ, नेचुरल फाइबर के साथ, उसको ब्लाइंडेड फाइबर बना देते हैं, ठीक है, और फिर उसको अपने अपने क्लॉथ बनाने के लिए यूज करते हैं, और वो क्या होता है, फिर कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज वाटर अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर्स। Fabric that absorb very small amount of water are very uncomfortable to wear in hot and humid environments. So बच्चों वही चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि समर सीजन्स के अंदर हॉट इन्वायरमेंट के अंदर हम कौन से क्लॉथ ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो क्लॉथ इजीली हमारे स्वेट को, वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, ऐसे फैब्रिक जिनकी वाटर ऑब्जर्विंग कैपेसिटी बहुत कम होती है वो क्या होते हैं, समर सीजन के अंदर अनकंफर्टेबल होते हैं, और वो कंफर्टेबल किसके अंदर हुए, फिर कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर और कोल्ड वेदर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज द फैब्रिक दैट ऑब्जर्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आर क्वाइट कंफर्टेबल टू वेयर इन सच वेदर कंडीशंस। जिन फैब्रिक्स की वाटर ऑब्जर्विंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है वो क्लॉथ कौन, किस चीज के लिए कंफर्टेबल ज्यादा है, किस चीज के अंदर, वेदर कंडीशन कौन सी हो, सेम वही हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब समर्स के अंदर ऐसे क्लॉथ्स बहुत कंफर्टेबल रहेंगे हमें, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स हैव हायर वाटर ऑब्जर्विंग कैपेसिटी देन सिंथेटिक फाइबर। तो हमने पढ़ा था ना सिंथेटिक फाइबर की वाटर ऑब्जर्विंग कैपेसिटी क्या हुई, बहुत कम हुई, है ना, और नेचुरल फाइबर्स की क्या होती है, वाटर ऑब्जर्विंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हम नेचुरल फाइबर्स को समर सीजन के अंदर ज्यादा प्रेफर करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर। फर्स्ट इज कॉटन एंड रायोन। कॉटन क्या करती है, वो क्या करती है, कैच फायर इजीली एंड कंटिन्यू टू बर्न विद ब्राइट येलो फ्लेम, किसके साथ बर्न करती है, ब्राइट येलो फ्लेम के साथ, ठीक है, और वो जलते हुए कैसे स्मेल करती है, जैसे कि पेपर जल रहा हो वैसे स्मेल करती है। उसकी ऐश कैसे होती है बच्चों, लाइट और
feathery, ठीक है। नेक्स्ट इज सिल्क एंड वूल। जब हम सिल्क या वूल को जलाते हैं तो क्या होता है, डू नॉट कैच फायर इजीली, वो इजीली आग नहीं पकड़ती, और जब वो उसमें आग लग जाती है, जब वो आग पकड़ लेती है, देन बर्न विथ येलो फ्लेम। कौन सी फ्लेम के साथ, येलो फ्लेम के साथ बर्न होती है, बट डू नॉट कंटिन्यू टू बर्न, वो क्या करती है, वो बर्न कॉन्टिन्यूसली नहीं होती। कैसे होती है, मतलब कि जैसे हमने उसको आग लगाया है ना, वो थोड़ी देर तो बर्न हुई, उसके बाद क्या हुआ, वो बर्न होना बंद हो गई, तो इसीलिए वो बर्न कॉन्टिन्यूसली नहीं होती। जब वो बर्न होती है तो उसकी स्मेल कैसी होती है, जैसे कि स्मेल ऑफ बर्निंग अ हेयर, जैसे हेयर नहीं बर्न होते वैसे स्मेल आती है। उसकी ऐश कैसे होती है बच्चों, बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है और क्रशेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ये क्या करते हैं, दे डू नॉट कैच फायर इजीली, ये भी क्या करते हैं, बड़ी जल्दी से आग नहीं पकड़ते, और जब पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, श्रिंक अवे फ्रॉम द फ्लेम एंड मेल्ट। जो वो आग पकड़ लेते हैं वो क्या करते हैं, एकदम से तो श्रिंक हो जाते हैं, और क्या करते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, प्रॉपरली मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनकी स्मेल कुछ डेफिनेट नहीं होती, नो डेफिनेट स्मेल, और उनकी ऐश कैसे होती है, हार्ड एंड अनक्रशेबल होती है उनकी ऐश। सो इससे क्या पता लगा हमें बच्चों, नेचुरल फाइबर बर्न विद येलो फ्लेम एंड सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन बर्निंग। हमने देखा ना, ये दोनों ऊपर क्या थे, कॉटन एंड सिल्क एंड वूल, क्या थे सब, ये क्या थे, ये नेचुरल फाइबर थे। ये किसके साथ करते हैं, ये बर्न कैसे होते हैं, येलो फ्लेम के साथ। और जो ये सिंथेटिक फाइबर है, ये पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, मेल्ट हो जाते हैं बर्न के टाइम पे, ओके। नेक्स्ट इज मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। हम यार्न से फैब्रिक को कैसे बनाए, देयर आर टू मेन प्रोसेसेस फॉर मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। दो मेन प्रोसेस है, फर्स्ट इज वीविंग एंड सेकंड इज knitting. Let's discuss in detail. Weaving. Weaving is the arrangement of two sets of yarn to make a fabric. Weaving में क्या होता है बच्चों, दो सेट ऑफ yarn, मतलब टू yarn के दो सेट को अरेंज किया जाता है प्रॉपरली, किसके लिए, फैब्रिक को बनाने के लिए। The threads are crossed over and under each other. इसके अंदर क्या होता है, जो yarn जो थ्रेड होते हैं ना, उनको अक्रॉस करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और क्या करते हैं, अंडर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। दिस इज डन ऑन द मशीन नोन एज लूम्स। ये किसके अंदर बनते हैं बच्चों, कौन सी मशीन के अंदर, लूम्स के अंदर। द लूम्स में बी एदर हैंड ऑपरेटेड, लूम क्या होती है, तो हाथ से चल सकती है, जिसको कहते हैं हैंड लूम्स, और पावर ऑपरेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उसको क्या कहते हैं, पावर लूम्स, ओके। This is a picture of weaving pattern. In this pattern you can see the crossing and the overlapping. See students, ये देखो, ये क्या है, ये है क्रॉसिंग, ये देखो ये नीचे जा रहा है, ये क्या है, अंडर ईच अदर, है ना। तो क्या ओवरलैप करना, क्रॉसिंग करना, ये क्या है, वीविंग का पैटर्न है। ये देखो, ये क्या है, हैंड ऑपरेटेड लूम्स, जो क्या है, हैंड से चलता है, और ये क्या है, पावर ऑपरेटेड लूम्स, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज knitting. The process of making a woolen sweater by interlocking loops of wool yarn is called knitting. knitting के अंदर क्या होता है बच्चों, आपने अपने कभी अपनी ग्रैनी को, अपने ग्रैंड मदर को, या फिर अपनी मदर को, या फिर कोई भी नेबर में अपने किसी को देखा है स्वेटर को बुनते हुए, स्वेटर बनाते हुए, तो कैसे बुनते हैं, वो नीडल्स की हेल्प से बुनते हैं ना, निटिंग नीडल्स की हेल्प से, तो उसको क्या कहते हैं, नीटिंग, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नीटिंग। तो इसके अंदर भी यही बताया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वुलन स्वेटर बाय इंटरलॉकिंग अ लूप्स ऑफ वूल यार्न इज कॉल्ड नीटिंग। इंटरलॉकिंग लूप्स कैसे होता है बच्चों, देखो ये देखो, नीटिंग फ्रॉम अ वूल यार्न, देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, ये क्या है, हमारी नीटिंग नीडल्स है, और जो ये क्या है, हमारा
ये इंटरलॉकिंग लूप्स हैं, ये लूप्स बनती हैं जिससे क्या बनता है, लूप्स बनते बनते क्या बनता है, हमारा वुलन स्वेटर कंप्लीट हो जाता है। Knitting can be done by single yarn और group of yarns। knitting क्या हो सकती है, knitting किससे बन सकती है, या तो हम एक टाइप के yarns यूज करें या फिर डिफरेंट yarns यूज करें, इट डजेंट मैटर, हम कैसे भी knitting कर सकते हैं, ठीक है। knitting needles are used to make fabric by hand on a small scale। small scale के लिए हम क्या करते हैं, knitting needles यूज करते हैं, ये हम इस knitting needles को यूज करते हैं स्मॉल स्केल के लिए, और इससे क्या बनती है, फैब्रिक बनती है। इन फैक्ट्रीज knitting is done using machines। फैक्ट्रीज के अंदर क्या होता है, ये लार्ज स्केल के अंदर क्या होता है, knitting किससे होती है, मशीन से होती है, ठीक है। Other than sweaters, another garments such as t-shirts, gloves, caps can also be made by knitting। तो स्वेटर के अलावा भी हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं knitting की हेल्प से, लाइक टी-शर्ट्स, ग्लोव्स, कैप्स एक्सेट्रा। knitting fabric are more stretchable than woven fabric। knitting fabric क्या होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है वीविंग फैब्रिक से, बिकॉज these are knitted on the knitting needles। बिकॉज ये किसके ऊपर बनाया जाता है, नीडल्स के ऊपर बनाया जाता है, इसलिए, ठीक है। So students, this is the end of our chapter। We will meet soon in the next video। Okay, till then, bye।